Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद सरबजीत। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला। प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और अब हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर। Benchmark domestic indices end in negative terrain. Sensex slips over 300 points. Nifty closes at nearly 23,700. RBI's Monetary Policy Committee meeting begins in Mumbai today. Decision to be announced on Friday. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $75.33 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक टूटा। निफ्टी 23,700 के करीब हुआ बंद। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट। ब्रेंट क्रूड $75.33 प्रति बैरल पर। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज सीमित दायरे में हुए कारोबार के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्रों में आई गिरावट ने बाजार को नीचे खींचा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की मंदी से 312 अंक कम होकर 78,271 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.18% की गिरावट से 43 अंक कम होकर 23,696 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो इनका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा और तेजी दर्ज हुई। मिड कैप सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.4% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices ended today's range-bound session in negative terrain, dragged by reality, FMCG and consumer durable sector. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex slipped 312 points or 0.4% to close at 78,271. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 43 points or 0.18% to settle at 23,696. The broader market indices at BSE outperformed the equity markets. The mid-cap index advanced almost 0.7% and the small-cap index gained over 1.4%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Asian Paints dropped over 3.3%, Titan shed over 3%, and Nestle India fell over 2.2%. Meanwhile, among the top gainers, Adani Ports rose 1.6%, IndusInd Bank advanced 1.2%, and Tata Motors gained over 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 sectors ended in positive territory. Among top gainers, oil and gas surged almost 1.9%, services added almost 1.6%, and metal increased over 1.5%. Conversely, in top laggards, reality shed over 1.6%, FMCG lost over 1.4%, and consumer durables fell over 1.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,548 companies advanced and 1,417 declined, while 140 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 33 companies hit their 52-week high, while 34 hit their 52-week low. Mr. Prakash, we'd like to have your expert comment on this. In fact, it's been the headlines in the business newspapers today that the shareholding gap between the DIIs and the FPIs has narrowed to a record low of 33 basis points by the end of December 2024. And this, in fact, marks the smallest gap since the year 2009.
What, in your view, is the primary reason behind this, and how significant is this for the Indian market? Well, it's quite obvious. For the last few months, Yes, the foreign institutional investors have been on a selling spree, that's right. and the gap is being filled by the domestic institutional investors, Right. and who include mutual funds, retail investors. So that is what explains the gap that you're referring to. Now, as far as the significance of it's concerned, well, as of now, so far, the DIIs have been able to hold ground and somehow provide stability to the Indian market. But it is not to suggest that the FIIs going, if they keep on selling, that it would make no difference. Of course, Right. it will make a difference. We would like FII investment as also DI investment for a stable market, and we don't want this kind of a turmoil, so to speak, so much of a volatility in the marketplace, which of course is the feature around all the markets today. That's it's right. not unique only to India. It's a global scenario, if I may say. That's right. प्रकाश जी, आज लगभग 312 अंक के करीब गिरा है सेंसेक्स। सो मंडे को भी हमने इतनी ही गिरावट देखी थी, लेकिन कल 1400 अंकों का उछाल आया था। सो अभी क्या लगता है आपको, बाजार क्या ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ ज्यादा देख रहा है या डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा हावी हैं? जो मेन फैक्टर्स सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए जी, जो ये कॉम्बिनेशन है, ये सबका मिला जुला इम्पैक्ट है, और लेकिन ये कोई दो राय इसमें नहीं है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, और वो ग्लोबल फैक्टर्स भी क्या, वो फैक्टर्स जो हमारे यूएस के नए प्रेसिडेंट आए हैं, ट्रम्प जी, उनके चलते उन्होंने जो पॉलिसीज, जो टैरिफ वॉर शुरू करी है, जंग हो गई है, एक तरह की छिड़ गई है जंग। राइट. जो एक ट्रेड वार है, वो बात नहीं रही है, वो छिड़ गई है. व्हाट इन इंग्लिश दे कॉल द सैल्वोज हैव बीन फायर्ड एंड द काउंटर्स आल्सो हैव बीन फायर्ड. तो जब आपको लग रहा है कि विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज, नंबर 1, नंबर 2, आर आउट इन द ओपन फाइटिंग ए ट्रेड वार विच इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड, नेचुरली जाहिर बात है कि उसकी घबराहट मार्केट्स में दिखेगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दिखेगी. आप सोने का भाव देख लीजिए किस तरह से चढ़ रहा है, लोग सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं जी. तो ये मैंने जैसे जिक्र किया, नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी नंबर की इकोनॉमी आपस में भिड़ गए, और अमेरिका जो है अपने अलाई से भिड़ गया. इतनी बड़ी इकोनॉमीज का इम्पैक्ट तो पूरे विश्व पे पड़ेगा ना. तो जब पड़ेगा तो ये मार्केट में तो घबराहट तो कल भी हम कह सकते हैं एक रिलीफ रैली थी जब मेक्सिको और कनाडा से जो टैरिफ्स थे वो 30 दिन के लिए आगे कर दिए गए. अगर हम चाइना और यूएस जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनके बीच में ट्रेड वॉर लगता है कि मेनली होगी, चाइना ने भी शुरू हो गई रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात कर दी है, तो इसका क्या एक सिल्वर लाइनिंग हम देख सकते हैं कि भारत के एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, जैसा पिछली बार देखा गया था? जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़े थे, बिकॉज दीज कंट्रीज दे स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. एक्चुअली क्या होता है जब वार सिचुएशन टाइप हो जाती है ना, ट्रेड वार ही है ना, है तो वार ही, ट्रेड वार है, इसमें विनर्स बहुत कम होते हैं. तो ये सोचना ठीक नहीं होगा कि फलां हारेगा तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता. सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा. जीत की बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज क्या कोई क्रिएट होंगी हमारे लिए? वो अब ट्रम्प साहब है, सब कंट्रीज को अपने अपने रडार में ला रहे हैं. अब हमें भी चिंता है, हमारे को भी उसमें होगा. ट्रम्प साहब ने एक सिग्नल दे दिया है, वो टैरिफ बढ़ा के वो टैरिफ को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, और उसका वो ये चाहते हैं कि मैं टैरिफ को वेपन की तरह यूज करूं, उसके बाद जिस पे टैरिफ लगाया वो मेरे सामने आमने सामने टेबल पे बैठे बातचीत करें. तो हमको भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ये करना चाहिए, ठीक है हम आमने सामने टेबल बैठते हैं, आपके लिए अमेरिका फर्स्ट है, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है. आपने अपने हाई वैल्यू बाइक को सेव करना है, मुझे अपने किसान को सेव करना है. मेरे को मैं अपनी मार्केट, जो मेरी एग्रीकल्चर की मार्केट है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोल दूँ आपके लिए, तो मेरे लिए संभव नहीं है, एटलीस्ट मुश्किल है. मैं आपके लिए हाई वैल्यू बाइक की मार्केट खोल सकता हूँ,
लेकिन वो भी एक गिव एंड टेक के उसमें। तो हमको एक बोलना कि जब हम नेगोशिएट करेंगे तो भाई इक्वल लेवल पे आके करेंगे, मार्केट में आके हम आपसे तैयार हैं। आफ्टर ऑल वार में हमें कोई फायदा नहीं, हमें दिलचस्पी भी नहीं, हम तो चाहते हैं आपके साथ ट्रेड करना। हम क्यों नहीं चाहेंगे, आप हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम जो है आपके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से ये बात करेंगे, लेकिन इक्वल फुटिंग पे आके बात करेंगे। And Mr. Prakash, if I may say so, that the temporary halt is indeed temporary in the true sense of the word. There's not much to celebrate, as it's being also said that it's still seen to be seen what changes at the fundamental levels, and it's only at the, at the very basics that we are talking about a halt, and things and scenario remains the same. What do you have to say about it? It's not about halt. Its question is that Trump has started it, the tariff as a weapon. Now, question is that, and we, India and US bilateral trade, if you take a look at it, Right. We enjoy a surplus. We export more than what we import. Correct. This is what tariff is going to be. The tariff story might pan out. The American president would tell us that, look, you are exporting to us more than you are importing from us. Why don't you open your market to us in these items? So it is up to our negotiators to find out where it's like the give and take. Let us be professional about it. And then I'm sure the Commerce Ministry negotiators, with the help of MEA, with the help of Finance Ministry, with the help of Agriculture Ministry, with the help of New and Renewable Energy Ministry, because the stakes are very high for solar energy. That's right. अगर हम आप टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, सो टैरिफ्स या कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन जो हमारे बजट में हुआ है, बहुत सारे जो इनपुट्स हैं उन पर कईयों पर जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है उसको हटाया गया है, ताकि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो करेक्ट हो सके। सो जो मेन इनपुट्स हैं, जो पार्ट्स यूज होते हैं LCD LED टीवीज में, लिथियम आयन बैटरीज में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, सोलर मॉड्यूल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की गई है बजट में। और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस में ऑफ कोर्स जो मध्यम वर्ग के लिए जो टैक्स कट्स किए गए हैं और डायरेक्ट टैक्स कोड जल्दी लाने की बात की गई है, ये कितना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी को पुश देने के लिए, डिमांड को पुश देने के लिए, एक्सपोर्ट्स को पुश देने के लिए और बाजार के सेंटिमेंट के लिए लॉन्ग रन में। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो बजट की फीचर्स हैं, जो बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये है कि जो इनकम टैक्स राहत मिली, 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसमें जीरो टैक्स होगा, और 12,75,000 जो सैलरीड क्लास है उन पे जीरो टैक्स होगा। तो काफ़ी सारा पैसा जो है जब इनके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा तो वो खर्च भी करेंगे। कोई अपनी बाइक ले लेगा EMI पे, कोई मोबाइल फ़ोन ले लेगा, कोई अपना फ्रिज ले लेगा। तो ये सारा जो सेक्टर है ना, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं, जिनको नॉन ड्यूरेबल्स बोलते हैं, कोई हो सकता है ज़्यादा अपना लोन बढ़ा के छोटा घर ले ले, तो ये डिमांड बूस्ट तो है, ज़बरदस्त है बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। It's going to boost the purchasing power of the consumer. Yes, because he's got surplus. So you have given money in the hands of the consumer. So That's इसका right. भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आमतौर पे 2 या 2.5 गुना होता है। आप मेरी 1 रुपया इनकम बढ़ाएंगे, मैं जाके बाजार में खर्च करूंगा, वो इकोनॉमिस्ट डिफरेंट तरीके से निकालते, लेकिन 2-2.5 गुना तो होता ही होता है। तो अगर आपने 1 लाख करोड़ रुपए का राहत दी कंज्यूमर्स को, तो उसका जो मल्टीप्लायर कई बार 4 या 5 गुना भी हो जाता है, डिपेंड करता है आप कहाँ उसमें करेंगे। तो ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट तो होगा, और ये तो एक तरह का डोज अच्छी कंजम्पशन की जो डिमांड के लिए दी गई है। अब दूसरा एक और चीज़ इसमें आने वाली है जो हम उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि है बड़ा मुश्किल RBI के लिए। जो परसों RBI की पॉलिसी अनाउंस होने वाले हैं उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा गिरावट की शुरुआत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% का चौथा हिस्सा, 25 बेसिस पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो वो शायद RBI उसको अनाउंस करेगा, ये उम्मीद की जा रही है इंडस्ट्री जरा। हालांकि जो विश्व स्तर पे जो हालात चल रहे हैं उसके चलते है मुश्किल,
लेकिन एक तरह का अब फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना काम कर दिया और एक सी सिचुएशन भी बना दी, आरबीआई के पाले में बॉल फेंक दी, अब आप कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंटरी मेजर्स उनसे एक्सपेक्टेड, जैसे आपने जिक्र किया डिमांड बूस्ट का, तो फिर एक डिमांड बूस्ट को और आगे कुछ बल मिल जाएगा, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए, मेरा इनकम टैक्स बच गया, जो मैं ईएमआई पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ कम हो जाएगा, तो मेरे पास और रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। ये डिमांड बूस्ट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई चाहे मुश्किल है लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत करेगा। तो मीडियम टर्म में आप क्या देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का रुख? देखिए, ये स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक फंडामेंटल कई बार मिसमैच भी होते हैं, हालांकि ठीक होने तो चाहिए, मैच होना चाहिए। मिसमैच इस तरह से होते हैं कि ये आपने जिक्र किया डोमेस्टिक मैक्रो की, कि आरबीआई ने अपना काम कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काम कर दिया, अब हमारा इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट सेक्टर है, अब उनको भी आगे आना पड़ेगा। अब वो आएंगे नहीं आएंगे, वो पूरे विश्व में देख रहे हैं क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं। अब ट्रम्प साहब ने जो उनका प्लान है गाजा के ऊपर, वो और स्टन कर दिया लोगों, उससे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव तो नहीं होगी और ख़राब होने के अंदेशा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। एक और हमारी जो प्रॉब्लम है वो है हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है हमारी है, कॉर्पोरेट अर्निंग इतनी अच्छी नहीं रही। आपने कई शेयर्स का जिक्र किया जो आज ही काफ़ी लुढ़के हैं, लैगर्ड मोड में चले हैं, काफ़ी अरसे से लुढ़क रहे हैं, और जब भी उनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, या तो वो प्रेशर फेस करते हैं अपनी रेवेन्यू को लेके या प्रॉफिट को लेके फेस करते हैं, तो शेयर होल्डर की नज़र उन पर बनी रहती है। भाई आप जब तक वहाँ अर्निंग नहीं आएगी, नई एज की कंपनी है, अभी आप मैं पढ़ रहा था एक कंपनी है बड़ी फूड डिलीवरी में 700 करोड़ का उनका लॉस बाइडन हो गया। तो ये चलते जो है ना, वो हमको टाइम करेक्शन की इंतजार करनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं करेंसी बाजार में क्या हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट से रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 87 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। वैश्विक व्यापार युद्ध से जुड़ी चिंताओं ने निवेशकों में रिस्क लेने से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.48 पर था। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मोर ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ, डॉलर की मजबूती, रादर देन बाकी सभी जो विश्व की करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले वीक हो रही हैं। क्या हो रहा है कि जब से ये ट्रंप ने ऑफिस एज्यूम किया है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो 2 चीज़ों को सेफ हेवन मान रहा है। एक गोल्ड को, इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ाया जा रहा है, दूसरा डॉलर और अमेरिकन इकोनॉमी। तो पैसा जो है वो इमर्जिंग मार्केट से, उसमें इंडिया भी शामिल है, बाकी मार्केट से उधर शिफ्ट हो रहा है डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड, डॉलर मैं आपको पहले बताया, डॉलर जो एक करेंसी नहीं है, एक एसेट क्लास मानी जाती है, एक अकेली करेंसी है विश्व में जिसको ये पावर है, जिसको ये प्रिविलेज हासिल है कि वो एक एसेट क्लास भी है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं, आप डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके चलते प्रेशर रूपी पे भी है, बाकी ईएम्स जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन पे भी है। इसलिए मैंने जिक्र किया थोड़ी सी मुश्किल है आरबीआई के लिए भी, जब वहाँ पे जब मार्केट्स जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं एनीवेज पैसा अमेरिका में डाल रहे हैं, तो हमें पैसा चाहिए भी ना, तो हमको रुपीज़ को स्ट्रांग रखना है। नहीं रखेंगे तो एफआईआईज़ के लिए दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और आसान नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। हमारे आरबीआई ने अच्छा काम किया अभी तक, लेकिन अब सबसे बड़ा उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन। The 3-day meeting of the Monetary Policy Committee or MPC of the Reserve Bank of India is scheduled to begin today in Mumbai. The meeting will continue till Friday. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions of the MPC on interest rates on Friday morning. Currently, the bank has kept the repo rate unchanged at 6.5% since February 2023. Mr. Prakash, although you have dwelt at length about this, that at many instances the stock market and the policies do not relate to each other 101. But nevertheless, in your opinion,
what is your feel? How will the stock markets react to this upcoming decisions on Friday? Well, the stock market is already penciling in 25 basis point cut by RBI. So naturally, it will send a positive signal that okay, RBI has started reversing the interest rate cycle. Correct. Which was kind of a high interest rate cycle. That to that extent, there is a signal. So signal will be read well by the stock markets. But as I said, that is not the only metrics which is now at play. सो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनकी पहली पॉलिसी है. कमेंट्री पर भी सबकी नजर होगी. डविश कमेंट्री होती है फ्यूचर को लेकर या जीडीपी ग्रोथ को लेकर. एक साल से 6.5% का अनुमान दिया है. आपको लगता है कि उसमें कुछ संशोधन हो सकता है या आगे की आउटलुक में जो वो बातें कहेंगे उस पर भी नजर होगी? इंटरेस्ट रेट कट के अलावा बाजारों की ये जो आपने जिक्र किया कमेंट्री, इसको आरबीआई की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टांस, कि ना केवल इंटरेस्ट रेट ही इम्पोर्टेंट होता है कितना चेंज किया, उसमें पॉलिसी में साफ लिखा जाता है कि जो स्टांस होगा आरबीआई का गोइंग फॉरवर्ड वो अकोमोडेटिव होगा या अकोमोडेशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं. तो वो जो स्टैंड है उस पर बाजार की नजर रहेगी. जैसे आपने जिक्र किया, लाइक यू मेंशन कि व्हाट्स गोइंग टू बी द स्टैंड्स. द स्टैंड्स इज गोइंग टू बी रेड. द मार्केट विल पिक अप इट्स द सिग्नल्स फ्रॉम द स्टैंड्स. So stance is going to be very important, and this stance has to keep into account the prevalent global situation, geopolitical situation, our domestic market situation, our domestic economy, all the demand situation, the impact of the results or the impact of the measures announced in the budget, how is going to pan out. It is also going to take into consideration how our Rabi crop is going to see how we are going to see Rabi crop. The expectation is that Rabi crop is going to give us good results this time around, because the crop area, sown crop area has increased, excepting maybe edible oils. So we are pinning our hopes on Rabi crop. We are pinning our hopes on, but the rest of that. In fact, if you ask me, agriculture is a bright spot in our scheme of things. जी. Agriculture is a bright spot because, as I said, Rabi crop is prospects are brighter for Rabi crop, but rest of the things are we have to wait and watch. It would be unfair to see which way things, because as I said, the world is at a trade war. When you top economies of the world are at a play, and obviously we could only expect that this trade war will cease, or we'll have a ceasefire of a trade war. That's right. Moving on to the next news item, Chief Minister Mamata Banerjee has said that most of the investment proposals received at the previous Bengal Global Business Summits have been implemented. Inaugurating the 8th Global Bengal Business Summit at Biswa Bangla Convention Centre in New Town, she said total investment proposals worth 19.51 lakh crore rupees were received from the previous 7 summits. She announced the formation of a state-level industrial coordination committee under the chairmanship of the Chief Secretary to resolve all issues related to investment in the industry. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bhutanese Minister Yonsen Ponsung, along with more than 200 delegates from 40 countries, among others, were present during the inaugural session. Mr. Prakash, very briefly, your expert comment on this in regard to growth of Bengal as a state and for the country at the national level. See, these states have to compete to attract investment, and one should welcome the initiative that Chief Minister Mamata Banerjee has taken. But these investment summits have to be, as she has said, that the previous investments announced have been implemented. We were talking about, Soniji was talking about the opportunities yes, there are opportunities. For instance, this whole business of China plus one strategy.
So we are sitting on a cusp of an opportunity. It is not up to the center alone. The states must also join in and try to leverage this opportunity, which is waiting to be captured. So, and mind you, and West Bengal is it's located so well in Southeast Asia. If Vietnam can do it, why should we do it? आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.9% से अधिक की गिरावट में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.6% गिर गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की मंदी दर्ज हुई। इस बीच दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% के उछाल पर बंद हुआ। हालांकि जापान का निक्केई 0.09% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख बाजारों में रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.1% से अधिक की गिरावट पर था और जर्मनी के डैक्स में कोई खास गिरावट नहीं हुई थी। उधर लंदन का फुट्सी बहुत मामूली बढ़त पर था। US stocks edged higher yesterday, boosted by gains in energy stocks, while investors hoped for a potential trade breakthrough between the US and China after President Donald Trump postponed tariffs on Canada and Mexico. The tech-heavy Nasdaq Composite rose 1.3%, S&P 500 added over 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.3%. और अब चले कमोडिटीज की ओर सरब जी। Yes, indeed. Sonu, oil prices edged down today after an industry body data indicated rise in U.S. crude inventories. Also, fear of a new trade war between the U.S. and China weighed on the market. Brent crude was trading over 1.1% down at $75.33 per barrel, and WTI crude also declined over 1.1% to trade at around $71.87 per barrel when reports last came in. So, silver lining है ट्रेड वॉर की। और चलते हैं सोने की ओर। भारत में सोने की मांग 2023 के 761 टन के मुकाबले वार्षिक आधार पर 5% बढ़त दर्ज करती हुई 2024 में 802.8 टन दर्ज हुई। मांग में इस बढ़त को आयात शुल्क में कटौती से समर्थन मिला। इसके अलावा शादियों और त्योहारों के लिए हुई खरीदारी से भी मांग को बढ़ावा मिला। और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1% बढ़कर 84,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.34% बढ़कर 96,410 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 1.05% बढ़कर 84,677 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.5% बढ़कर 96,189 रुपए प्रति किलो पर था। बहुत ही ब्रीफली आप बताएं प्रकाश जी, ये जो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचा है सोना, इसके क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है जो ट्रेड वार हो गए। इसके चलते सेफ हेवन, जैसे मैंने जिक्र किया, एक एसेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें डर ना लगे। मार्केट तो क्रैश हो गया तो इसलिए हम कहाँ जाएं? तो इन्वेस्टर है, जो आपने जिक्र किया, डेटा दिए सोने के कितने टन, ये उसमें काफ़ी कुछ दो तरह की डिमांड होती है सोने की, इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी डिमांड। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी, और सेंट्रल बैंक्स भी इंक्लूडिंग आरबीआई हैज़ बीन बाइंग गोल्ड, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स को भी अपने रिजर्व्स रखने हैं। तो 3-4 जो मेजर बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उसमें से हमारे आरबीआई भी हैं जिन्होंने काफी हद तक सोना अपना वो किया। समय समाप्त हो गया है, सो चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें बहुमूल्य जानकारी दी। शुक्रिया। Listeners, before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end in negative terrain. Sensex slips over 300 points. Nifty closes at nearly 23,700. RBI's Monetary Policy Committee meeting begins in Mumbai today. Decision to be announced on Friday. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $75.33 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Goodbye. नमस्कार। Market Mantra.